Everyone, yes, welcome back to a law session. This is CS Gaikwad from Hgpa. We have started with study from home sessions, and we've already halfway down through our law syllabus. We have completed Company Act 13, Indian Contract Act, Seal of Goods Act already चालू हो चुका है. So Unit 2 I had already uploaded the video. So as I mentioned earlier, Unit 2 को मैंने दो वीडियो में बांटा था. First video already upload हो चुका है. This is the second video on very small concept called as caveat emptor. Okay, let's get straight to the point. So caveat emptor का मीनिंग है लेट द बायर बिवेयर. सो लेट द बायर बिवेयर. सो बेसिकली आई गिव स्टार्ट विद एग्जांपल. सो इफ वी गो टू, हम लोग जाते हैं सब्जी मंडी में, व्हेन वी गो एंड सिलेक्ट वेजिटेबल्स, द सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन. यार वो नहीं बताएगा वो उस काकड़ी में ये है, उस गाजर में है, वो कुछ भी नहीं बताएगा. ही विल बी साइलेंट बिकॉज ही हैज गिवन यू एन ऑप्शन टू सी इट विद योर ओन आइज, विद टच इट. अब देखो हाथ में वो सब्जी लो, चेक करो, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगा. ठीक है, एंड यू कैन गो कम बैक टू यार ये खराब था. वो क्या बोलेगा, यार आपने चेक भी किया था, आपने हाथ में भी लिया था, सो नाउ यू कैन नॉट ब्लेम मी. सो कैवेट एम्प्टर का स्ट्रेट प्राइमरी मीनिंग क्या है, लेट द बायर बिवेयर. सेलर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज एनीथिंग. यार वो क्यों बताएगा खुद के प्रोडक्ट में जो खराब है, वो नहीं बताएगा. बट हैविंग सेड दिस, yes, every rule has an exception. So yes, even this rule has an exceptions. These are 9 exceptions over here, and we'll straight go to it. Okay, this is the only important part in this. Okay, so caveat emptor का first exception है as regarding to fitness or as to quality or use. So basically इन सब में one thing दिमाग में ध्यान रखो, इन सब केसेस में seller is responsible. Seller is responsible. This should be there in the back of the mind, then this becomes very easy actually. Okay, first thing, fitness as to quality or use. So इसमें केस लॉ है प्रीस्ट वर्सेस लास्ट. तो केस लॉ में ऐसा हुआ था, सो बेसिकली वन पर्सन गोज टू अ केमिस्ट to tell him कि यार his wife was suffering from cold, so please give me a hot water bottle so where then he can pour the hot water in that. He gives a hot water bottle, but when the person comes back home and when he pours the hot water bottle, वो burst हो जाता है और उसकी wife को injury होता है. So the water bottle was not meant for hot water. So उसका main purpose था, उसने सीधा बताया था कि भाई मुझे hot water bottle ही चाहिए. Seller ने जानबूझ के दूसरा water दिया उसको. So in this case the seller cannot tell caveat emptor you have to be aware. No, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, because the buyer had straight away told him what was his first requirement. So yes, in this case the seller will be responsible. Okay, preach versus last. Second, goods purchased under patent or brand name. Please have a look over here. This is the most confusing part. बहुत students को ये नहीं समझ में आता ये part. So under brand name, let's I give an example. Please note it down also. Let's say any brand. So for example, yes, I go to Bata for buying shoes, and when I come back home वो shoes पे tampering होता है. It is not that this. So what is going to happen over here? Will I go to Bata showroom and do it? और will I go to Bata manufacturer? No, I will go to a seller जिसने बेचा है ना, वो जिसका फ्रेंचाइजी में, उसके पास जाऊंगा. I will not go, हाँ ब्रांड नेम है तो डायरेक्टली बाटा को हेड ऑफिस को फोन करूँगा, अरे आपने क्या बेचा है, ऐसा नहीं यार. I will go to a seller. The seller will be responsible even if it is a brand name. लेकिन वो ब्रांड नेम एक जगह पे रहता है. It is a head office and it is spread through all over. Everyone is a seller in the radius. Okay, for example, Bata is in Delhi, मुंबई में उसका फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, and I buy the shoes from the Mumbai. I will go to a seller at Mumbai only. I will not go to Delhi. बाटा को फोन नहीं करूंगा मैं, अरे यार आपने क्या बेचा है. मैं वो मुंबई वाले के पास जाऊंगा, उसको बताऊंगा मैं, अरे यार you have sold me the wrong shoes और tampered वाला shoes. Okay, so under brand name the seller is responsible. This is very easy. Okay, सबका एक ही मीनिंग है. First, sale by description. अगर वो प्रोडक्ट पे कुछ तो लिखा है और वो डिस्क्राइब कुछ तो और हो रहा है. आपने लास्ट एक वीडियो में मैंने एग्जांपल आपको बोल रहा था, सैनिटाइजर फॉर एग्जांपल, उसमें लिखा है यार कि इट इज़ 100% अल्कोहल फ्री, और इफ आई यूज द सैनिटाइजर इट इज़ नॉट, यार उसमें अल्कोहल दिख रहा है मुझे, जो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है. आई विल हेल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड आई कैन ऑल्सो कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब क्या, मर्चेंट क्वालिटी मतलब क्या, इट शुड बी फिट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीच का आदमी हूँ, अगर मैं ट्रेडर, आई एम टेकिंग द गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर एंड आई सेलिंग इट, इट शुड बी merchantable. It should be commercially viable in the market. If it is not, I will hold the seller responsible. Next, sample. Last मैंने डायरी का एग्जाम्पल लिया था. For example, if the diary जो सैम्पल में आ रहा था, it is not matching with the bulk quantity, so obviously I held the seller responsible for this. अरे यार तुझे सैम्पल तो एक दिखाया, बट आपका bulk quantity वो रिजेंबल नहीं कर रहा उसमें.
ओके सेम सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेम लास्ट टाइम वीडियो का एग्जांपल, डायरी तो मंगाया था मैंने सैम्पल पेपर, मैंने उसको स्पेसिफिकली बोला था मुझे वो डायरी लेदर में चाहिए, आई वांट अ ब्लैक डायरी बट आई वांटेड इन लेदर, लॉट तो आया पूरा बट वो लेदर में नहीं था, सो आई कैन हेल्प द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट ट्रेड यूसेज, इट शुड बी फिट फॉर ट्रेड, एंड द लास्ट इज अगर वो सेलर फ्रॉड कर रहा है देन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि योर सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द transaction, okay, in case of fraud or negligence or anything which is hiding. I'll give an example for this. Let's say ओला पे मैंने सेकेंड हैंड कार परचेस किया एंड वाइल टेकिंग उसमें कुछ ही वॉज वेरी साइलेंट अबाउट इट, बट ही न्यू कि कार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेट्स से कार का इंजन का बहुत बड़ा उसको फटका बैठा था एंड दैट इज द रीजन ही वॉज सेलिंग द कार। आई बाई द कार आफ्टर 2 months आई कम टू नो अबाउट दिस कि नहीं यार इंजन में बहुत बड़ा फटका था एंड द सेलर न्यू अबाउट दिस, सो ही वॉज डूइंग फ्रॉड, उसने फ्रॉड किया है। इन दिस केस येस द सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, ही विल नॉट टेल आपने गाड़ी देखा नहीं का, बिकॉज इट्स इंटरनल थिंग। गाड़ी जब उसने रखा सेल के लिए तो ऑब्वियसली मैंने बाहर का देखा वहाँ कुछ स्क्रैच है कुछ नहीं है, बड़ी इनसाइड वाला प्रॉब्लम था और ये उसने मुझे बताया नहीं। इन दिस केस आई विल हेल्प द सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजैक्शन। ओके, सो दिस वॉज केविट एम्प्टर। आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग। Yes, so thank you so much for watching. So we have 2 units left in sales of goods side. I'll upload that also. Thank you very much for watching.